चालू करके आप भी सारे बच्चे मुझे याद ठीक। Now the students, today in the study class, previous class when we are discussing about getting to know about plants, and that we have started the other parts of the plant, that is the flower. This part we have in the previous class we have started, and here in the flower today we are going to very important things which we are going to discuss here. Okay, fine. So here we are going to talking about all the kind of the things which is related to the flowers. ठीक, यहाँ पे मैं सबसे पहले I will draw a figure of flowers till the time you make a silence. ठीक है, सबसे पहला part जो होता है, just this is the part which is known as in the flower. This is the part which is known as इसको बोलते हैं बेटा receptacle. हाँ बेटा कल से शुरू किया था मैं सबको, किसी हटा दी आज की क्लास नहीं, मैं थोड़ी देर में बाद में मेरी बात तो करो नहीं अभी मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, this is the part of the flower which is known as receptacles. ठीक है, इसको बोलते हैं, and nearby this receptacles there is a sepal. This is the part of the, that is called, this part is basically called a sepal. Sepal. This part is called a sepal. This both part. I will also talk about the in detail what is the function of these parts in the flower. Now with that, the septaples part, there is a part that is called a female part. It is attached with this. Is attached with this. This whole the part is known as female part in the flower. This whole part is known as female parts in the flower. Here this part which is attached with the, that is called style. This part is known as basically stigma. And this part is known as
ovary. Stigma, all the part, the combined part is known as female parts, and this part, the oval shape is known as ovary in the flower. This stick part is known as style, and this is a part which is known as a stigma. Okay? After that, there is some with that ovary, there is another kind of the things which attached with this ovary, and that is called this part. Here there is a number of this is basically called a stamen. This part is basically called a stamen. This is called a stamen, and this stamen part is known as male part. Male parts in the flower. This flower is basically divided in two parts. One part is known as a female parts, and that female parts having different kind of the combined part, and attached with this female part there is another kind of the part that is known as a male part, and this male part, ये part को क्या बोलते हैं? Basically this part is known as stamen, and with that stamen there is this part, the upper part, this part is called anther. It is called anther, and this long strip is known as filament. This long strip is known as filament. Long strip is known as filament. There is an anther, and this long strip is known as filament. Okay? And this male part is known as stamen. That means stamen is divided in two parts. One part that is called the filament, and another part, that filament is attached with the ovary, and another part which is known as upper part, top tip of this filament is known as anther. ठीक है? अब जरा इसके पीछे there is a background of this flower. इस flower के पीछे उसको हम बोलते हैं leaves होती हैं, flowers की leaves होती हैं. Leaves को जरा मैं इस तरह से बना रहा हूँ. It is a one kind of leaves. This is another kind of leaves. ये आपकी leaves है, और इस leaves को बोला जाता है basically. This leaves is known as ये leaves हैं. These leaves are known as petals. These leaves are known as petals. ये समझ में आ रहा है बेटा? I told that this is a flower. It is a one kind of flower. In this flower,
there are the different parts which we have to understand. The starting part, which is attached with the stem, this is a stem of flower. This is called a stem of flower. This part which attached with the stem of flower is basically known as receptacles. Receptacles. This part is known as receptacles. Okay? And with that receptacles, there is another kind of the leaves which is attached with the receptacles. That another kind of leaves is basically known as sepals. These are the known as sepals. इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोला जाता है. These are known as sepals. ठीक है? बता रहा बेटा. I will come with your question. Now here there is a attached part with that receptacles. इसके साथ जो attached part है, that part is basically known as the female parts. ठीक है? There is a two parts. One is known as female parts, another one is known as male parts. Female parts तो का structure जरा ध्यान से देखना. This is the female parts structure. कभी भी कोई फ्लावर देखना है तो उसके अंदर इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है. This is kind of the structures. ठीक है? ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की from this point यहाँ से start हो रहा है यहाँ तक की this point. ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट्स है. फीमेल पार्ट्स में क्या क्या होता है? ये जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है, this oval shape structure is known as ovary. इसको क्या बोलते हैं? ओवल शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवरी. इसके अंदर जो होते हैं, inside the ovary there is a dotted kind of structure. Inside the ovary there is a dotted kind of structure. That dotted kind of structure is known as ovules. This dotted kind of structure is known as ovules. This dotted kind of structure is known as ovules. ठीक है? अभी इसको बता रहा हूं क्या है. सेफल हो गया, ओवल्स हो गया, ओवरी. ओवरी के ऊपर जो स्टिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, लॉन्ग स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है स्टाइल. That structure is known as style. This structure is known as style. ठीक? Style से सटा हुआ, just attach the part which is attached with the style, that is called as stigma. That part is known as, that is called as a stigma. इस part को हम क्या बोलते हैं? Stigma बोला जाता है. Fine. इसके साथ there is another part that is known as male parts in the flower. Another part in the flower that is called a male part. In this male part there is a long strip, and this long strip is known as, basically all the part is known as stamen. इस long strip को हम क्या बोलते हैं? Stamen. And in this stamen there is a two things are there. Two things. कौन कौन से? ये long strip को बोला जाता है, the long strip attached with the ovary, that is called filament. इसको हम बोलते हैं filament. And another part, the filament which attached with the another part of the male, that is called, इस part को बोला जाता है जो ऊपर है, सबसे ऊपर, that is called anther. इसको बोलते हैं anther. ठीक है? इसके साथ जो है यहाँ पे फिलामेंट हो गया anther, and behind this, all the flower के behind में क्या है? Leaves हैं. This is the leaves of the flower. These part, this big part is known as leaves of the flower, and leaves of the flower is basically known as a petals.
जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पेटल्स बोला जाता है। These are the petals. Fine. ये चीज समझ में आ गई? These are known as petals. भावेश, भावेश। सर ये जो ऐसा बीच में जो ये है स्टेग्मा वाला, सर इसको एक और नाम से भी कहते हैं पिस्टिल। ये पूरे को पिस्टिल नहीं, ये जो बोल दिस फीमेल पार्ट, जिसको हम फीमेल पार्ट बोल रहे हैं, दिस होल द पार्ट इज नोन एज पिस्टल। मतलब पिस्टल में क्या क्या आ जाएगा? सर ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवल, स्पिन्स करके सब आ जाएंगे। ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। पिस्टल इज द फीमेल पार्ट, पिस्टल इज द फीमेल पार्ट अंडर दिस। और सर ये जो ओवरी होती है सर, ओवरी के अंदर एक डंडी होती है सर, डंडी जैसे कुछ होता है, उसके कोने में जो डॉट डॉट जैसे दाने जैसे होते हैं सर, उस वो ही ये फ्लावर को ग्रो करने में मदद करते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवल्स, दैट इज कॉल्ड ओवल्स। हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया सर, ओवल्स। नाउ व्हाट हैपेंड हियर? अब नहीं बोलना बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। भावेश कहाँ गए? These part, have you understand? All the flower parts I have shown in front on the board. Have you understand? Naman, सर आपने सब पे टॉप में लिखा है ना सर? petals. सर वो क्या है? Petals. सर या पेटल इज द लीव्स। जो फ्लावर्स की पंखुड़ियां होती है ना, उसको पेटल्स बोलते हैं। ये लीव्स है। और सर आपने सर इसके पिस्टल क्या सर? ये पिस्टल इज द नोन एज अ फीमेल पार्ट। पिस्टल इज अ फीमेल पार्ट, ठीक है। in this pistil there are the different of the parts. सर आपने लिखा है फीमेल पार्ट। हाँ सर आपने फीमेल पार्ट लिखा है यहाँ। हाँ, वो सभी पिस्टल के अंदर में आएंगे, जैसे स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ओवल्स हो गया। These are the females, ठीक है, which comes under pistil. Okay? Okay सर। ये फिगर समझ में आ गया? All of you, have you understood with that figure, with this figure? Yes. फिगर सबके समझ में आ गया? Yes. आ गया ना? फिगर समझ में आ गया? Yes. अब जरा ध्यान से सुनना, जो फिगर मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो फिगर का कंस्ट्रक्शन है, दिस इज नोन एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लावर। व्हाट वी कॉल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लावर। अगर कोई फ्लावर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेगा, दिस इज द होल डायग्राम ऑफ दिस फ्लावर। राइट? जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑल द पार्ट्स आई हैव मेंशन्ड हियर। अब ध्यान से सुनना, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। Also मैं फिर से बता दे रहा हूँ, these things are already mentioned in the previous video which is uploaded in YouTube, ठीक है? सर आप वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ, previous video में already uploaded है। Just you have to listen and pay your attention towards the board and listen me carefully. What I am going to do, what I am going to tell you that what is the function of these different parts. आपको समझना है, इस पार्ट्स का अपना एक फंक्शन होगा। What is the work of these parts? कल्पज्ञ, फाइन। सर एक पार्ट दिख रहा है जरा सर आपके पीछे सर साइड होगा। मैं बेटा सभी पार्ट्स को वन बाय वन करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बस लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी ओनली। फाइन? फाइन है ना? अब जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होगा और मेरी वॉइस की तरफ होगा। मैं इंडिकेट करूंगा बोर्ड की तरफ, आप उसको ध्यान से सुनना। देखो ये पार्ट है, इट इज द पार्ट
happened here? This receptacles is attached with the stem. यहाँ पे क्या होगा? ये attached with the stem and ये flower को क्या चाहिए होगा to grow this flower? What are the necessary things which is required? Flower को grow करने के लिए what are the necessary things which required? देखो स्टेम है, स्टेम के थ्रू ये रिसेप्टेकल्स जुड़ा हुआ है, अटैच है, ठीक है। स्टेम वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, उसके ऊपर पूरा पार्ट जो है फ्लावर का है। ये रिसेप्टेकल्स बेसिकली काम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फूड, इट प्रोवाइड्स फूड, ठीक है। और ऑल्सो यहाँ पे क्या करता है? दीज फूड्स क्या करता है? जो स्टोरेज फूड होगा यहाँ पे उसको पूरे के पूरे प्लांट में, पूरे के पूरे फ्लावर्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट द फूड्स इनटू द प्लांट। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टेकल्स? रिसेप्टेकल्स का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट इज टू transport the foods in the whole the flower. फ्लावर में इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना है। फूड का पार्ट का काम क्या है? फूड को पूरे फ्लावर्स में ट्रांसपोर्ट करना। फाइन, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट देखो, द सेफेल। दूसरा पार्ट इसका क्या है? सेफेल। इस पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। सेफेल इज a leaves-like structure. Cephal is a leaves-like structure. ध्यान से सुनना सभी लोग। Cephal is a leaves-like structure. ठीक है? ये leaves-like structure flower को सपोर्ट करता है। This leaves-like structure supports to the flower. सपोर्ट करने का काम क्या करता है? और also क्या करना है इसमें? ठीक है, ये सपोर्ट्स टू द होल द फ्लावर, सपोर्ट करेगा। साथ में एक काम और करेगा, जब ये फ्लावर की जो लीव्स हैं ओपन होती हैं, व्हेन द फ्लावर्स लीव्स आर ओपन, व्हेन द फ्लावर लीव्स आर ओपन, तो उस ओपनिंग करने में इसको सपोर्ट करने का काम करती है। फ्लावर लीव्स की ओपनिंग करने में सेफेल सपोर्ट करता है, ठीक है। It supports the leaves of flower to open. Clear है? सेफेल का काम क्या हो गया? फ्लावर को जो लीव्स हैं जब ओपन होती हैं, when these leaves are open, at that time these सेफेल supports them. लीव्स उस समय क्या करती हैं? उसको सपोर्ट करती हैं, ठीक है, ओपन होने के लिए। क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? सेफेल का काम क्या है? लीव्स को ओपन करने में सपोर्ट करना। ये दो पार्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आता है पेटल्स का, जरा ध्यान से सुनना। पेटल्स, दिस इज द पेटल्स। हैव यू सीन the different flowers have a different color? Different flowers have a different color. ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं पेटल्स के, व्हाई दीस आर द डिफरेंट इन कलर? बिकॉज जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, देयर आर द नंबर ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, वो इंसेक्ट इन कलर के द्वारा, जो इसकी फ्लावर की कलर होती है उस कलर के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। द इंसेक्ट जो एनवायरनमेंट में इंसेक्ट होंगे, दैट इंसेक्ट्स आर अट्रैक्ट बाय द कलर ऑफ दीस पेटल्स। जब वो कलर यहाँ पे जो कलर है, जब वो कलर इंसेक्ट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए, इंसेक्ट कलर द्वारा इंसेक्ट अट्रैक्ट किए जाते हैं, व्हाट हैपन? दे सेटल डाउन ऑन दिस स्टिग्मा। वो यहाँ पे आकर के क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। बात समझ में आई? सर ठीक है सर, आप स्टाइल तो पेटल्स है, वो पेटल्स के डिफरेंट कलर होते हैं। कलर होने के पीछे का रीजन क्या है? कि जितने
इंसेक्ट होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इन पेटल्स के द्वारा अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर, और इसलिए वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आकर के स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं। दे सेटल डाउन ऑन द स्टिग्मा व्हिच इज द फीमेल पार्ट्स, वो यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। ये क्लियर हुआ? आर यू क्लियर विद दिस? व्हाई द कलर ऑफ द पेटल्स आर देयर? पेटल्स का कलरफुल होना क्या बताता है? देव, देव बेटा, देव, ओपन योर मोबाइल। यस सर। पेटल्स का कलरफुल होना क्या बताएगा? व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कलर ऑफ द पेटल्स? सर 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 आप बता सकते हैं स्टाइल क्या होता है? मैं सर किसी कॉल आ रहा है, स्टाइल क्या होता है? अभी बेटा बता रहा हूँ, मैंने जो बताया वो समझ में आया? पेटल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर पेटल्स। पेटल्स जो है लीव्स हैं, स्टाइल बता रहा हूँ बेटा। पेटल्स क्या है? लीव्स हैं, and these leaves has a different color, and what is the significance of this different color? The significance of this different color is to attract the insect, ठीक है, वो बाहर की जो इंसेक्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, and because of the attraction of this color the insect sit down in this stigma, स्टिग्मा पर आकर के बैठते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? क्षितिज, सर मैं बोल रहा हूँ सर मेरे पास ये सारा है सर, देख लो सर, ये इसकी रेसिपी टेबल हो गई इधर। हाँ नीचे वाला बेटा बगल में। और सर फिर वो जो फ्लावर को सपोर्ट करती है वो भी सिफिल, हाँ हरे रंग का होगा, ग्रीन कलर। ये सर ये रही ना, ये रही। हाँ और सर फिर अंदर ये फीमेल पार्ट। हाँ, ये जो फ्लावर का जो ये है ना लीव्स, जो कलर है ना रेड कलर में, यस सर, वो रेड कलर क्या है? पेटल्स है बेटा। और रेड कलर क्या? और सर ये स्टीमेन, और सर ये स्टीमेन। हाँ नहीं, और ये स्टीमेन नहीं, पेटल्स इज नॉट अ फीमेल, इट इज जस्ट अ लीव, ठीक है। सर मैं बोल रहा हूँ ओवेरी, सर जो स्टाइल है वो तो फीमेल पार्ट है ना। हाँ स्टाइल इज अ फीमेल पार्ट, वहां की बात नहीं कर रहा हूं, पेटल्स की बात कर रहा हूं। और सर फिर ये मेल पार्ट, सर ये मेल पार्ट है। लीव्स की बात कर रहा हूं बेटा, लीव्स की, ठीक है। लीव्स का कलरफुल होना क्या बता रहा है? लीव्स का कलरफुल होना क्या बताता है? बेसिकली वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करता है सर। जो बर्ड्स होती हैं छोटी छोटी, उनको अट्रैक्ट, ताकि वो यहाँ पे आकर स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं। दे सेटल डाउन और दे सिट डाउन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। इतनी चीज। सर स्टिग्मा तो एक पिन जैसी होती है, और वो लोग इतने बड़े होते हैं तो फिर वो सेटल कैसे हो जाते हैं उसके ऊपर? बहुत बड़े नहीं, जो छोटे छोटे आपने इंसेक्ट देखे होंगे ना, that kind of the insect we are talking about here. भौरा होता है ना, भौरा, एक चिड़िया जो हमेशा रहती है, ठीक है, वो भौरे जो है यहाँ पे आकर बैठते हैं, ठीक। Now after that these are the three parts over. अब हम बात कर रहे हैं इसके फीमेल पार्ट्स की। फीमेल पार्ट्स में पहला आ गया आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा में क्या होगा बेसिकली, देखना ध्यान से, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट्स को बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? पिस्टल, ठीक है। फ्लावर में फीमेल पार्ट इज नोन एज ए पिस्टल, क्या बोलते हैं इसको? पिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनना। अच्छा चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं, मेल पार्ट के बारे में, तब फीमेल समझ में आएगा। ये जो मेल पार्ट्स है, दिस मेल पार्ट्स इज बेसिकली कॉल्ड एज ए, ऑल द मेल पार्ट्स इज बेसिकली कॉल्ड एज ए स्टिग्मन। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मन, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं, जरा ध्यान से देखना, कुछ ऐसा होगा स्टिग्मन अलग से ड्रॉ करने पर। दिस इज द स्टिग्मन, ठीक है।
ये आपका स्टेमन है। सर ये कौन सा पार्ट है? ये स्टेमन है बेटा, मेन पार्ट जो यहाँ पे ये वाला है ना, दिस स्टेमन है ये। एंड दिस स्टेमन का ये जो लॉन्ग थ्रेड है, दिस लॉन्ग थ्रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलामेंट। सर इसको ड्रॉ कर सकते हैं अभी? ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे है ऑलरेडी, मैंने बनाया, इसको जस्ट अलग से दिखा रहा हूँ। ये लॉन्ग थ्रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंथर। दिस पार्ट इज बेसिकली नोन एज एंथर। ठीक, एंथर में क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे, जैसे सर आपने तो पहले पार्ट में सर कुछ लिखा है सर, तो आप यहाँ क्या लिख रहे हैं? मैंने ये लिखा है बेटा एंथर। एंथर के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स दिखा रहा हूं, दैट पॉइंट्स जो यहाँ पे पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ए पॉलन। इसको क्या बोलते हैं? पॉलन बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड ए पॉलन, POLLONE, पॉलन, पॉलन ग्रेन। ठीक है, यस। दिस पॉलन ग्रेन इज द, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली, देखो जो हमारा सेपल क्या है बेटा? सेफेल मैंने ये बोला ना कि ग्रीन पार्ट होता है यहाँ पे। सर दोनों सेपल पार्ट होते हैं ना, एक लेफ्ट से लीव। हाँ ये वाले ना, ये हाँ, इसको सेफेल्स बोलते हैं। सेफेल्स ग्रीन कलर का होता है नीचे से, जब फ्लावर को आप देखो तो ग्रीन कलर का एक लीव्स होता है, जिसके ऊपर जो कलरफुल है, कलरफुल लीव्स जो है अटैच होती है। ठीक है, ये सेफेल्स का काम ही ये है कि इनको ओपन होने में, ओपनिंग करने में हेल्प करने का काम करती है। सर आप ये वीडियो यूट्यूब में डाल रहे हो ना? नहीं बेटा, ये समझ में आया आपको? इतनी देर समय फिलामेंट समझ में आ गया? व्हाट इज फिलामेंट? Filament is a long thread kind of structures which attached with the ovary. यहाँ से ovary से attached है। ठीक सर, upper layer is a सर आप ये वीडियो यूट्यूब में डाल रहे हो ना? नहीं बेटा, उससे नहीं मतलब रखो, अभी फिलहाल मैं जो बताना उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, आपको मिल जाएंगे कंटेंट, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो तो ऑलरेडी आपके पास है। दिस इज द एंथर। एंथर में क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से सुनना। एंथर में क्या होगा? एंथर में स्मॉल स्मॉल टाइप्स ऑफ होल्स एंड दिस काइंड ऑफ द होल्स इज नोन एज पॉलन। पॉलन बोला जाता है इसको, छोटे छोटे होते हैं। इन छोटे छोटे पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? बेसिकली क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो पॉलन ग्रेन होता है इसको बोला जाता है स्पर्म। क्या बोला जाता है? pollen grain is basically called as a male, ये एक तरह का मेल हार्मोन होता है। ठीक है, that is called sperm। और सर आपने साइज, सर तो साइज के ऊपर है ना? हाँ सर ये इसके बगल में क्या लिखा है सर? तो ये सर छोटा यहाँ पे ऊपर इसके सर बगल में सर ये एंथर। हाँ सर ये एंथर, एंथर। सर एंथर क्या? एंथर वही तो बता रहा हूँ यहाँ पे। एंथर को मैं यहाँ पे ले आया बेटा। एंथर, एंथर के अंदर स्मॉल स्मॉल पोल्स होते हैं। पोलन का मतलब जैसे आपने थर्माकोल देखा ना, थर्माकोल,